Hello, good morning. So, this is gonna be the last leg of our journey today. We are in Ahmedabad. This hotel is really nice. Its name is Regenta. We all loved it. The theme of the wallpaper is about kites, and Gujarat celebrates Makar Sankranti and Kite Festival. And the wallpaper idea of making it black and white and focused at one point in color is beautiful. Yeah, Of it's course. unique. Yeah, of course the TV is good, big and loaded with channels. Not like you cannot do anything, just watch the black screen. Not. The working table is also there. There is a relaxing chair here. But if you sit once here, you would not be able to get up. So Yeah. sit at your own risk. The theme of this room is Chinese. It looks like. It's not really Chinese. It's just the lights that are inspired by the Chinese lanterns. The kettle and the refrigerator is also here in this hidden area. It looks like it's hidden. There is a safe lock and the lights are there inside the cupboard. The refrigerator is black. That's it. And when we go to the... This is another beauty to the room. The bathroom is pretty clean and complete. Actually, all the bathrooms should have this separated toilet and bath area, but very few. When you close the door, it's not going to spill all the water. Yeah, it's nice. It doesn't make the toilet seat wet. So today we are gonna travel for around 9 hours. We will go from Ahmedabad. I'm calling it Ahmedabad because it is Ahmedabad. We're gonna travel from Ahmedabad to Jodhpur. I have planned to wash the clothes there so that whatever we were using until now can be all cleaned up and reused later. Yeah. Yeah. Let's see how the journey goes. तो ये हम लोग अहमदाबाद से अर्ली मॉर्निंग निकलते हुए वी आर टेकिंग द रूट बाय पालनपुर. करीब हम लोग को लगेंगे 7 घंटे. भाई रोड बहुत खराब है. एकदम से ब्रेक कर. और आदि इज फिक्सिंग द pajamas of the bits. The weather is so cold here on the way to Rajasthan. पानी में हाथ नहीं डालना. गंदा पानी है. इट्स वेरी डर्टी वाटर. हाँ, स्वेटर से भी ठंड नहीं रुक रही. Advait, nothing should be going in the water, baby. बहुत टाइम हो गया ऐसा. Come to mom. Baby. Baby, careful.
Look, I made a bottom. राजस्थान बॉर्डर में एंटर कर लिया हमने. नो चेक पोस्ट, नो चेकिंग सो फार. We started from Kerala to Tamil Nadu, Tamil Nadu से कर्नाटका, कर्नाटका से महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद गुजरात और गुजरात के बाद राजस्थान. From southern part to the middle part of India, beautiful Aravalli Hills and beautiful Rajasthan. And beautiful tunnel. And beautiful tunnels we saw on the way. They were nice. गुजरात बॉर्डर खत्म हो गया है. अभी हम लोग राजस्थान में एंटर करने वाले हैं. टाइम हो रहा है 8:40 और अहमदाबाद से हमने स्टार्ट किया था अराउंड 4:30 और 5. रास्ते में बहुत अच्छा प्लेस मिला, मिडवे रेस्टोरेंट. वहाँ पे बच्चों ने खूब एंजॉय किया. This is really cool weather there. टेम्परेचर वहाँ पे 9 डिग्रीज था. हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हमें स्वेटर कैप सब निकालना पड़ेगा. कुछ वहाँ पे फ़ोटोज़ खींचे, गरम गरम चाय पिया, ब्रेड पकौड़ा खाया, बहुत सारे मज़े किए. एंड टॉयलेट्स वर ऑल्सो वेरी क्लीन देयर. देयर वाज ज़ीरो क्राउड बिकॉज एवरीथिंग वाज क्लोज्ड. ओनली 1 or 2 शॉप्स वर ओपन. देयर ऑल अरावली हिल्स. अब बहुत टाइम के बाद कुछ खेत नज़र आ रहे हैं. जैसे ही एंटर किया इस एरिया में, ग्रेनाइट मार्बल, ग्रेनाइट मार्बल, ग्रेनाइट मार्बल, यही सब शोरूम चल रहे थे. There are hills almost everywhere. They are 70 kilometers away from Mount Abu. We are not going to Mount Abu this time. It's a good place though. Mount Abu 69, Ajmer 388. And our destination is 293 kilometers away, which is estimated as 4 hours 35 minutes long. As per Google, it is still green. Hopefully there will be no traffic. We will reach within the time. राजस्थान बॉर्डर पे क्या चेक करेंगे? We are prepared for everything. महाराष्ट्र में तो कुछ नहीं चेक किया ज़्यादा, जल्दी जल्दी निकाल दिया. और गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में तो बिल्कुल कोई था ही नहीं, कोई चेक पोस्ट ही नहीं था. इनफैक्ट हमें समझ ही नहीं आया कि बॉर्डर क्रॉस हो गया.
turn. He's explaining how to Let's turn. Oh, okay. Thank you for letting me know. Whoa! ये क्या कर रहे हैं? सनरूफ वाली गाड़ी है। और ये लोग सनरूफ से बाहर निकल के अपना फोटो खिंचाते हुए Oh, it's door. और अपनी तोड़ भी New दिखाते हुए। gate. Close. You're inside of it. What color are the walls? Gray. Okay, they're gray and blue, right? That's it. It's looking like a cave. It looks like a cave, but they built a road just inside of it. Using only one tunnel. The other tunnel, I think they are doing some maintenance work. Can we open the tunnel? Can we open the tunnel? Can we open the tunnel? Yes, wait. It will open, but Respect the animals crossing road. Ooh, look at the area, Adi. Look at the surroundings. So now we have come from Coconut Land to this place. which is desert land. Yes, not many trees, some bushes here. They call this the heart of desert, right? So far from after Maharashtra, we have not seen any other car with the KL number. Hello. Only 26 minutes left. हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं, 4 दिन से चल रहे हैं और अब जहाँ फाइनली पहुँचने वाले हैं वो जगह आधे घंटे के अंदर आने वाली है। टर्रेन पूरा चेंज हो गया है, ग्रीनरी से हमें बहुत रेतीला मैदान दिखने लगा है, बुशेज हैं आसपास और ट्रैफिक लोग थोड़े कम हो गए हैं, कोई मारामारी नहीं है क्योंकि शायद बहुत कम लोग इस तरफ जा रहे हैं। मिट्टी का कलर बदल गया, हमने देखा कैसे बहुत ज़्यादा ग्रीन से कैसे बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो रहा है। टेम्परेचर इज़ कोल्ड। थैंकफुली हम लोग विंटर सीजन में आए हैं, वरना बच्चों के साथ गर्मी के सीजन में आना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। गाड़ी का शीशा छूने से लगता है बाहर अभी थोड़ा ठंडा है। तो अभी हम जोधपुर में एंटर करते हुए, जोधपुर अराउंड 12 किलोमीटर रह गया। अभी तक का रूट बहुत अच्छा था। सुबह अहमदाबाद से निकलने के बाद एक्सेप्ट फॉर दैट स्टेट हाईवे जहाँ थोड़े बहुत स्पीड ब्रेकर्स और सब कुछ था, लेकिन बाकी सब एकदम अच्छा रोड, आराम से अच्छी स्पीड पे क्रूज करके आ सकते हैं। जोधपुर में हम यहाँ पे 2 दिन हैं, 2 दिन देखते हैं हम क्या क्या कर सकते हैं। यहाँ एक मेगा मॉल है इंडिया बुल्स का, जिसमें आइनॉक्स भी आ रहा है। रास्ता बहुत ही अच्छा था, नो प्रॉब्लम ऑन द रोड्स। बहुत सारे ढाबे हैं, बहुत सारे होटल्स हैं। हम लोग एक मिडवे में गए थे, इट वाज रियली नाइस। जोधपुर इज 12 किलोमीटर, अंबाला 626। कुछ बहुत ही सुंदर ओल्ड आर्किटेक्चर दिखता है कभी कभी। पुरानी चीज़ें देख करके बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ऐसी चीज़ें अभी तक सिर्फ किताबों में या मूवीज़ में ही देखा था। केरला से लेकर के राजस्थान तक आना हमारे लिए एक अचीवमेंट है। वी जस्ट विश एंड प्रे रिटर्न जर्नी भी सेफ, साउंड एंड हेल्दी रहे। कभी कभी बीच बीच में ट्रेडिशनल अटायर में लोग दिखते हैं। ज़्यादातर लोग तो मॉडर्नाइज हो चुके हैं, बट शायद पुराने लोग जैसे अंकल आंटीज सर पे पगड़ी और कलरफुल क्लोथ्स में नजर आते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है उन्हें देख के। बच्चों के लिए तो एक कम्प्लीटली नया एक्सपीरियंस है। वो देख रहे हैं कैसे काली मिट्टी और पिंक सॉइल कैसे चेंज हो रहा है सब कुछ। हम लोग उत्तराखंड से राजस्थान आए थे, दिल्ली से,
होते हुए, और अब हम केरला से राजस्थान आए हैं। बट पहले हमने कभी ऐसे ब्लॉग नहीं बनाया। दिस इज द फर्स्ट टाइम वी हैव ट्राइड टू रिकॉर्ड दिस वीडियो। और एयरप्लेन लैंड करते हुए इंडिगो, कोई प्रोसेशन जा रहा है यहाँ से। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, कुछ भी नहीं है। पुलिस भी खड़ी है, साथ भी चल रही है। हम लोग सोच रहे हैं हमें मास्क पहन के बैठना चाहिए, बट इट्स ओके, ये सब चलता है। ताकि भी छोड़ रहे हैं साथ में। कहीं सर पे लगे। माले हाँ, मेरे को हम लोग ने एक गलत टर्न ले लिया, उसकी वजह से हम शायद यहाँ फंस गए। सिटी के But अंदर। at least the duration was roughly the same. हाँ, इतना फर्क नहीं पड़ा ड्यूरेशन। अब अकॉर्डिंग टू द मैप 7 minutes आर लेफ्ट। ये हमारा जोधपुर राज का स्टे है, हवेली जैसा। बहुत प्यारा सा रूम है। बेड तो बिल्कुल ऐसा ही है जैसा कभी हमने ड्रीम किया था। Looks very royal. हाँ, लुक्स वेरी रॉयल। लोगों ने देखे तो थे ऐसे बेड, लेकिन कभी सोए नहीं थे ऐसे बेड में। बाथरूम भी काफी बड़ा है। होटल अच्छा लग रहा है, रहने से ज्यादा पता चलेगा, अभी सिर्फ एंटर किया है। ठंड है यहाँ पे, काफी टूरिस्ट भी रुके हुए हैं यहाँ पे। बट इस होटल को एक्सेस करने का रास्ता बहुत किचकिच है। बहुत नारो गलियां हैं और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। रोड इज़ ब्रोकन। The hotel is a good place itself, but the place it's in is not good. इट्स ओके, वी हैव टू स्टे इनसाइड। बाहर का तो हम 4 दिन से देख ही रहे हैं। अब अंदर रहेंगे तो थोड़ा आराम चाहिए। आगे शाम को देखते हैं। अभी पता चला कि यहाँ खाना नहीं मिलेगा होटल से इस टाइम, शायद हम लंच टाइम से लेट हो गए हैं। बट इंडिया में जहाँ भी होटल में जा रहे हैं अभी तक, सब जगह ज़ोमैटो और स्विगी से ऑर्डर करने का ऑप्शन है। नीचे से जो ऊपर तक हमारा सामान लेकर के आए हैं भैया जी, उन्होंने बोला कि आप ज़ोमैटो और स्विगी से ऑर्डर कर लें। तो बच्चे थक गए हैं, शायद भूखे भी होंगे, क्योंकि गाड़ी में ज़्यादा खाना देने से उल्टी भी हो जाती है। इसीलिए लिमिट में छोटा छोटा करके देती हूँ मैं। ये तो थका हुआ लग रहा है इंसान। अभी कुछ खाना ऑर्डर करते हैं, फ्रेश होते हैं और फिर देखते हैं आगे का क्या प्लान है।